کوچکی میں امریکی ڈرون حملے میں ملا اختر منصور ہلاک ہوا یا کوئی اور؟ 3 دن بعد بھی راز نہ کھل سکا۔ پاکستان کا ٹھوس شہادتوں کے بغیر تصدیق سے انکار۔ لاش لینے آنے والے افغان رشتہ دار کا ڈی این اے ٹیسٹ لے لیا۔ چودھری نثار کہتے ہیں ڈرون حملہ کسی دوسرے ملک سے کیا گیا۔ ملا منصور افغانستان، ایران اور دبئی بھی گیا۔ پاکستان میں ہی ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ کچھ مطلوب افراد مغرب میں کیوں آزاد پھر رہے ہیں؟ وزیر داخلہ کے سوالات۔ حملوں کی امریکی وارننگ غیر منطقی قرار۔ مری مذاکرات میں طالبان کابل کو جنگ سے پاک علاقہ قرار دینے پر راضی تھے، لیکن ملا عمر کی موت کی خبر پھیلا کر معاملہ سبوتاژ کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ کا انکشاف۔ کیا گاڑی کے قریب پاسپورٹ گمراہ کرنے کے لیے پھینکا گیا؟ تحقیقات جاری۔ شناختی کارڈ کی تصدیق کس نے کی؟ 2 سرکاری افسر مکر گئے۔ تحصیلدار گرفتار، ڈی سی او کے گرد شکنجہ۔ ایک اور نئی کہانی شروع۔ ڈرون حملہ ملکی سلامتی کے خلاف، پاک امریکہ تعلقات شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ کی وارننگ، کہتے ہیں وزیر اعظم کی واپسی پر باضابطہ رد عمل دیں گے، قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی بلائیں گے۔ کوئٹہ میں اسپینی روڈ بس اڈے پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، اہلکاروں سمیت کئی افراد زخمی۔ میرا کوئی ایسا مشن نہیں ہے کہ میں یہاں آؤں، میں غزالی صاحب سے یہاں آ کر ملوں، میں یا نواز شریف سے یہاں آ کر ملوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ آصف زرداری سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان کی دنیا نیوز سے گفتگو، کہتے ہیں برطانیہ میں ملاقاتیں ان کا مشن نہیں۔ نواز زرداری ملاقات ہوگی یا نہیں، ہر کوئی جواب کا منتظر۔ پاناما لیکس کی تحقیقات کی جانب بڑا قدم، ٹی او آرز بنانے کے لیے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم۔ آف شور کمپنیز، قرضوں کی معافی اور کک بیکس کے معاملات شامل ہوں گے۔ سیاستدانوں کے اثاثوں کی چھان بین کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے لگا۔ الیکشن کمیشن کا سیاسی ونگ غیر فعال، اکلوتا افسر عبد القادر بھی مستعفی۔ تحریک انتشار کے رہنما اور راولپنڈی کا چیدہ ٹلی کسانوں کو اس بات کے اوپر ورغلاتے رہے کہ جناب آپ یہاں پہ چنے منگوا لیں، آپ یہاں پہ دھرنا دیں۔ پی ٹی آئی والوں نے کسانوں کو دھرنے پر ورغلایا۔ رانا ثنا غصے سے لال پیلے، شیخ رشید کو پھر نیا نام دے دیا۔ ایم کیو ایم کی جانب سے ناانصافیوں کے خلاف دھرنے دینے کی دھمکی۔ فاروق ستار کہتے ہیں متحدہ کو تنہا کرنے والے خود تنہا رہ جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے چیک ریپبلک کی مسلح افواج کے سربراہ اور مالدیپ کے وزیر دفاع کی ملاقاتیں، 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ غیر معیاری گاڑیاں، غیر تربیت یافتہ ڈرائیور، سڑکوں پر موت بٹنے لگی۔ جام شروع میں المناک ٹریفک حادثہ، بس الٹنے سے 10 افراد جاں بحق۔ خراب حالت کے باوجود فٹنس سرٹیفکیٹ کس نے جاری کیا؟ ہم فزیکل فٹ ہے، ہم کمانڈو ٹریننگ کیا ہوا ہے۔ ویپن چلانا آتا ہے۔ ابھی ہم آئی صاحب کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کریں۔ سندھ پولیس کے 13 جوانوں نے فرض کی خاطر زندگی قربان کر دی۔ 4 سال بعد محکمہ قرار دیتا ہے کہ بھرتی جعلی تھی۔ 1819 دیگر اہلکار بھی فارغ، برطرف اہلکار سراپا احتجاج۔ طوفانی بارش سے تباہی، لاہور اور فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں حادثات، 9 افراد جاں بحق۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ڈائریکٹر امور خارجہ شفقت چیمہ کے کیس میں پیش رفت، نیب کا وزارت خارجہ میں دوبارہ چھاپا، کروڑوں کی 111 کنال اراضی کی دستاویزات برآمد۔
दुनिया न्यूज की खबर पर पंजाब की तारीख के सबसे बड़े पेंशन फ्रॉड का स्पेशल ऑडिट। नेशनल बैंक मुजफ्फरगढ़ में गबन का हजम 58 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तहकीकात कराने वाले अकाउंटेंट जनरल पंजाब जफर हसन तब्दील। कलअदम तंजीम की जानिब से हमलों का खतरा। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा को बम प्रूफ गाड़ी मिल गई। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में टीचर की बच्चे से मुबैना ज्यादती। अहले खानों इलाका मकीनों का एहतजाज। स्कूल में तोड़ फोड़, मुल्जिम जेरे हिरासत। क्लिफ्टन कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के सामने फुटपाथ क्लासरूम बन गई। बाहिम्मत खातून सैयदा अनफास अली ने स्ट्रीट चिल्ड्रन में इल्म की रोशनी फैलाना शुरू कर दी। बजट से पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी आ गई। तनख्वाह और पेंशन 15% तक बढ़ेगी। हुकूमत पर 614 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। मारूफ कॉमेडियन जावेद उर्फ कोडू को ब्रेन हैमरेज, जनरल अस्पताल लाहौर में जेरे इलाज। बुलेटिन का आगाज कोयटा से, जहां स्पिनी रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाके से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये बम सड़क किनारे नस्ब था। जख्मियों में 4 एहलकार शामिल हैं और इन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कोयटा से, जहां पर स्पिनी रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान, बताइएगा अब इस बारे में क्या बताया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये स्पिनी रोड पर मुबारक चौक के करीब ये बम नस्ब किया गया था, फुटपाथ के करीब। जैसे पुलिस की गाड़ी यहाँ से गुजरी है इसी दौरान ये धमाका हुआ, जिससे 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि इस धमाके की जद में 4 राहगीर भी आए, जिन्हें फौरी तौर पर बीएमसी और सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिसमें 2 पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ताम धमाके के बाद फौरी तौर पर एफसी और दीगर पुलिस के जो एहलकार थे वो मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेरे में ले लिया और शवाहिद इकट्ठे किए। ताल अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है और ये धमाके में जो जख्मी होने वाले हैं उनको सिविल हॉस्पिटल और बीएमसी कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान सईद आपका। बात कर लेते हैं एक और बड़े मामले की, जिसका सिरा नहीं मिल पा रहा। नोशकी ड्रोन हमले में कौन मरा, ये रास्ता हाल नहीं खुल सका। हतमी तौर पर कुछ भी सामने नहीं आ सका। ये बात कर रहे हैं चौधरी निसार। वो कहते हैं कि एक अफगान रिश्तेदार ने लाश के लिए राब्ता किया और रिश्तेदार का डीएनए भी ले लिया है। इसके बाद कोई हतमी फैसला होगा। नोशकी में ड्रोन हमला कैसे हुआ, चौधरी निसार ने तफसील बता दी। मारा कौन गया, वजीर दाखिला ने अभी हतमी तौर पर कोई तस्दीक नहीं की। पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी इदारों के पास कोई जरिया नहीं था कि हम सरकारी तौर पर इस खबर की कंफर्मेशन कर सकें। जो बैनुल-अक़वामी इतलात हैं अफगानिस्तान से उस पार से आई हैं और अमरीका के इस इतला के मुताबिक आई हैं, उसके मुताबिक तो ये कहा जा सकता है कि मुल्ला मंसूर ही इस मिसाइल अटैक का, इस ड्रोन अटैक का निशाना थे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी निसार ने बताया कि अफगानिस्तान से एक शख्स ने लाश की वसूली के लिए राब्ता किया है, जिसके बाद डीएनए सैंपल ले लिया गया है। उनके फैमिली के एक शख्सियत जो खूनी रिलेशनशिप है, उन्होंने ये मैयत उनके हवाले करने की दरख्वास्त की है बाकायदा तौर पे। तो डीएनए टेस्ट बाकायदा ले लिए गए हैं और जैसे ही इसकी कंफर्मेशन आती है इसके बारे में वाज़ेह ऐलान कर दिया जाएगा। वजीर दाखिला का कहना था कि हमले में मारे जाने वाले दूसरे शख्स की शनाख्त हो गई है, जिसकी लाश भी उसके वरसा के हवाले कर दी गई है। और चौधरी निसार का यह भी बताना था कि मोहम्मद वली का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मुशर्रफ दौर में बने। पीपल्स पार्टी के दौर में इन पासपोर्ट की तौसीक की गई। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि तस्दीक करने वाले 2 सरकारी अफसर मुकर गए, एक का इंतकाल हो चुका है। चौधरी निसार का यह भी कहना था कि तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस मामले पर डीसी से पूछताछ की जाएगी। नोशकी ड्रोन
हमला। एक मुट्ठी सुलझी नहीं थी, दूसरी कहानी शुरू हो गई। मरने वाले शख्स ने शनाख्ती कार्ड कब और कैसे बनवाया, वजीर दाखिला ने बता दिया। इसका शनाख्ती कार्ड 2005 में नहीं 2001 में बना और वो मैन्युअल था क्वेटा से। 2002 में वही शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज्ड हो गया। चौधरी निसार अली के मुताबिक मुशर्रफ दौर में बनने वाले शनाख्ती कार्ड की तहकीकात की गई तो 2 सरकारी अफसर तस्दीक से ही मुकर गए। एक मर चुका है और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 बंदे ने तस्दीक की थी, उन्होंने कहा जी ये तो हमारे ये हमने किए ही नहीं। अब कहाँ कोर्ट में जाना हो, गलत बात। जिसने वेरीफाई किया था सरकारी अफसर वो फौत हो गए। मैंने कहा 2005 के निकालो, तो 2005 के आए तो पता चला कि तहसीलदार किला अब्दुल्ला रफीक तरीन ने इसकी वेरिफिकेशन की है और उसकी को वेरिफिकेशन जो ऊपर होती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिन ऑफिसर किला अब्दुल्ला हाफिज ताहिर ने की। वजीर दाखिला ने बताया कि इसी शनाख्ती कार्ड पर 2005 में पासपोर्ट की दरखास्त की गई। 2012 में इस पासपोर्ट की तजदीद भी हुई। 2005 में इन्होंने पहली दफा पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, इनको पासपोर्ट भी मिल गया 2005 में। ये भी पिछला दौर था। 2012 में, ये पिछली हुकूमत के दौर में, इन साहब का पासपोर्ट रिन्यू हुआ। चौधरी निसार का कहना था कि नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी जैसे हसास इदारे में भी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। 614 नादरा मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाला जा चुका है। 65 गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अब भी सैकड़ों छुपे हुए हैं। इस मामले पर अब पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात की कश्ती पहले ही हिचकोले खा रही थी और ऐसे में ये नया तूफान। चौधरी निसार कहते हैं कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले पर अमरीका की वजाहत कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं और ये भी कहा कि वजीर आजम की वतन वापसी पर वाज़े मौक़िफ़ सामने लाएंगे। अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर के खिलाफ कार्रवाई। वजीर दाखिला चौधरी निसार पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर बरहम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के इस इकदाम को उन्होंने आड़े हाथों लिया। चौधरी निसार ने बताया कि अमेरिका ने वाक़े के 7 घंटे बाद इतला दी। उन्होंने ड्रोन हमले पर अमेरिका की वजाहत गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल करार देते हुए इसकी मजम्मत की। इसके साथ ही वजीर दाखिला ने खबरदार भी कर दिया कि ऐसे इकदाम से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। अमेरिका ने जो ड्रोन अटैक करने का जवाब दुनिया के सामने रखा है वो गैर कानूनी है, बिला जवाज है, नाकाबिले कबूल है। चौधरी निसार ने कहा कि अमेरिका की किसी भी मुल्क में दुश्मन को निशाना बनाने की मंतिक समझ से बाहर है। अगर अमेरिका का ये जवाब मान लिया तो दुनिया में जंगल का कानून नाफिज हो जाएगा। चौधरी निसार ने कहा कि वजीर आजम की वतन वापसी पर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई जा रही है। मुशावरत के बाद वाज़े मौक़िफ़ कौम के सामने रखेंगे। खारजा पॉलिसी की कमजोरी कहें या कुछ और, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने ड्रोन हमले पर जहां अमेरिका से एहतजाज किया, वहीं कई सवाल भी उठाए हैं। चौधरी निसार ने अमेरिकी ड्रोन हमले पर कई सवालात उठाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि मोहम्मद वली अफगानिस्तान में था तो अमेरिका के लिए खतरा क्यों नहीं था। मोहम्मद वली कई ममालिक में गया, उसे पाकिस्तान में ही क्यों निशाना बनाया गया। हमले से पहले पाकिस्तान को इत्तला क्यों नहीं दी गई। क्या पासपोर्ट कार से ही निकला या गुमराह करने के लिए वहाँ फेंक दिया गया। अगर तालिबान लीडर को पाकिस्तानी हिमायत हासिल होती तो क्या वो सिर्फ ड्राइवर के साथ आता। अमेरिका ने कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं की जब अफगानिस्तान में 1 लाख से ज्यादा फोर्सेस थी। अगर फौजी ऑपरेशन करना है तो कतर में तालिबान के दफ्तर का क्या जवाब है। मुल्ला मंसूर मुज़ाकरात में रुकावट होता तो मरी में दूसरा दौर क्यों होता। मरी मुज़ाकरात से चंद रोज पहले मुल्ला उमर की मौत की खबर क्यों लीक की गई। मिलिट्री ऑपरेशन हल होता तो 9/11 के बाद अब तक कामयाबी क्यों नहीं हुई।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज के साथ। वेलकम बैक। अहवाले सियासत यह है कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि लंदन में आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ से मुलाकातों का उनका कोई मिशन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो ये ही नहीं पता कि जरदारी लंदन में हैं या दुबई में। वो बर्मिंघम में दुनिया न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा कोई ऐसा मिशन नहीं है कि मैं यहाँ आऊँ, मैं जरदारी साहब से यहाँ आकर मिलूँ, मैं या नवाज शरीफ से यहाँ आकर मिलूँ। मुझे क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? जरदारी साहब यहाँ हैं या दुबई में हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता। जरदारी साहब हमारे दोस्त हैं, मेरे साथ ज़ाती ताल्लुकात उनके हैं और मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि मैं उनसे मेरा कोई मिशन ना हो और मैं खामखा कहूँ कि उनसे मिलने जा रहा हूँ। मौसम ऐसा हो जो दिल का मौसम भी बना दे, तभी तो इस्लामाबाद में मई के महीने में ठंडी हवा चली तो गर्मी में जैसे बाहर ही लौट आई। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा खान। शहरे बेमिसाल का मौसम मिसाली, मई में चली बादे बहारी। मौसम की मस्ती, सैरो तफरी के मतवालों की लॉटरी लग गई। ठंडी तेज हवा से रावल लेक में जवार भाटा, ऐसे में कश्ती रानी का अलग ही था मजा। यहाँ पे आके लग नहीं रहा कि गर्मियाँ, हवा इतनी ठंडी है और वी शुड ऑल कम हियर विद फैमिली। जब मौसम अच्छा हो तो ब्यूटी और ज्यादा हो जाती है, सो इसलिए हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मई में ठंडी हवा से पत्ता पत्ता डाली डाली झूम उठी। मंजर की ये दिलकशी सियाहों के दिलों पर नक्श हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और स्पेशली ये पानी वाली जगह है तो ये बहुत अच्छी लग रही है। हम लोग इस्लामाबाद में रहते हुए भी इस्लामाबाद के इस वेदर को एंजॉय करने के लिए स्पेशली इस पानी के पास आए हैं। फरहत बख्श हवा से गर्मी का जोर टूट गया। हसीन मौसम से हर कोई लुत्फ अंदोज हो रहा है। कैमरामैन खालिद शाह के साथ आयशा खान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। कोयटा में स्पिनी रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 4 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। कराची के ड्रिग रोड फ्लाईओवर पर फिर गड़ा पड़ गया। ट्रैफिक बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना।